Dear students, today we will discuss about Lord Gautama, means Lord Buddha, means about Buddhism. So here I want to say one important thing. It is a so long subtopic of this chapter, means about the Buddhism is given many important themes, means teachings, and also the followers of Lord Buddha. So it is too long, that's why I will discuss with you only the half part, and next video I will send you later, means the next part of Buddhism, means about Lord Buddha. So about the Gautama Buddha, now we will start. Let's start from 563 BC to 483 BC. See his birthplace Lumbini near Kapilavastu in Nepal. 563 BC में नेपाल का कपिलावस्तु का नाम का एक ठो जगह में उसके पास लुम्बिनी नाम का एक ठो गार्डन में लॉर्ड बुद्ध का मतलब गौतम था उनका नाम तो पहले तो उनका मतलब बर्थ हुआ था एंड हिज फादर नेम वाज सुधोधना किंग ऑफ कपिलावस्तु शाक्य फैमिली शाक्य क्लान में वो बिलोंग करते हैं एंड कपिलावस्तु में वो राजा थे. His name was Sudhodana. His mother name was Mahamaya and princess of Kosala. Kosala का राजकुमारी महामाया ने उनका mother, his mother, and she died within 1 week of his birth and cared by his mother's sister Gautami. तो गौतमी नाम का एक ठो उनका बहन के साथ मतलब उनका जो लालन पालन जो है जो केयर टेकर जो है वो थे इसी क्योंकि ना आफ्टर 1 week of his birth she died, means his mother died. So at the age of 16 Buddha, means according to Gautami his name was Gautam. So he married with Yasodhara and she gave birth to a son. His name was Rahul, not Rahulan, Rahul. So उनका वाइफ मतलब 16 एज उम्र में उनको शादी कर दिया गया था. His name was she was Yasodhara and also she gave the birth to a son. His name was Rahul. So about this, means this is the childhood and also his life of Gautama Buddha. So Gautama was not interested in married life. वो शादी करने के बाद भी इनका मैरिड लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे. एंड एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम महापरित्याग. Listen students, here is only points you will write in your copy also. At the age of 29 he left home. 29 एज में वो अपना घर छोड़ दिए थे ओनली फॉर महापरित्याग. इसको महापरित्याग बोला जाता है क्योंकि ना टोटली पूरा संसार को छोड़ के त्याग करके वो घर चले गए थे. And at the age of 35 he attained knowledge and great enlightenment. 35 age में means after so many years meditation he attained knowledge that is known as the great enlightenment. मतलब बुद्ध का मतलब है knowledge, wisdom, इसलिए उनको बुद्ध बोल के बोला जाता है. So first he gave first sermon at Sarnath. After getting the enlightenment, his first sermon he gave at Sarnath near Banaras. धर्म चक्र प्रवर्तन, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है क्योंकि ना जो ज्ञान उनको मिला था मतलब मेडिटेशन के समय में, मेडिटेशन तपस्या के बाद, हार्ड फिनांस के बाद वो सब चीज उसको वो सरमन मतलब जो फर्स्ट सरमन वो सारनाथ में दिए थे बनारस में. और ही पास्ड अवे इन 483 BC एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश. 483 BC में कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर में उनका डेथ हुआ था. The Buddha and the quest for enlightenment, the life of Buddha. मतलब ज्ञान का अन्वेषण करने के लिए बुद्ध का लाइफ कैसा था और कौन सा रास्ता दे करके वो गए थे. The traumatic incidents that changed the life of the Buddha. See कौन सा मतलब जो इंसिडेंट उनका लाइफ को चेंज किया था. Now we will discuss. Buddha was one of the most influential teachers of his time. Buddha was one of the most influential teachers of his time. वो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो प्रभावित करने वाला टीचर थे अपना शिष्य को और समाज को. His message spread across the subcontinent and beyond through Central Asia to China, Korea and Japan and through Sri Lanka, across the seas to Myanmar, Thailand and Indonesia. मतलब इतने सारे जगह तक उनका मैसेज जो है स्प्रेड हुआ था और लोग बहुत पसंद किए थे बुद्धिज्म को. Buddha was named Siddharth at birth and was the son of the chief of Sakya clan, Sudhodan. ये शाक्य क्लान का राजा सुधोधन का बेटा थे लेकिन उनका नाम पहले था
Siddharth, or he lead a sheltered upbringing in the palace detached from the harsh realities of life. वो घर छोड़ करके क्यों गए थे? क्योंकि ना उनका बिल्कुल भी मन घर में नहीं लग रहा था और इतने बड़े राजभवन में भी रहने के बाद भी उनको जो खुशी आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, बिकॉज ये कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. जीवन का एक्चुअली सत्य क्या है वो जानने के बाद उनको बिल्कुल और राजभवन में मतलब रहने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था. सो द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स दैट चेंज द लाइफ ऑफ द बुद्धा. कौन कौन सा इंसिडेंट इनका लाइफ को चेंज कर दिया था, नाउ विल डिस्कस. He undertook a journey into a city which was a turning point in his life. मन का ये हालत देख करके राजा ने मीन्स हिज फादर सुधोधन एक ठो व्यवस्था किए कि मंत्रियों के साथ उनको बाहर लेकर के घुमा के लाने के लिए. बट वो जब उनको बाहर ले लिया गया, when he shifted from his place to another place, means when during the period of his moving, that was the turning point of his life. So he was deeply anguished when he saw an old man, a sick man and a corpse. मतलब जब बाहर गए तो बाहर में देखे बुढ़ा लोग, एक ठो ओल्ड मैन को देखे, उनका मन परिवर्तन हो गया. सिक मैन को देखे जिसका जो असुस्थ थे, उनको देख करके भी उनका मन दिमाग चेंज हो गया. और कॉप्स मीन्स डेड बॉडी को देखने के बाद भी उनको लगा कि यदि इंसान लाइफ में ओल्ड होता है, सिक होता है, एक ना एक दिन मरना पड़ता है, तो ये लाइफ में हमको कौन सा सत्य के ऊपर में रियलाइज करना चाहिए, कौन सा सत्य को हम लोग अनुभव करना चाहिए. लाइफ को ऐसा व्यर्थ होना मैं नहीं दूंगा. ये चेंजेस आ गया था उनका लाइफ में एंड इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. सो इट वाज एट द मोमेंट दैट ही रियलाइज्ड दैट डिके ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल. जब उनको पता चला कि ये शरीर एक ना एक दिन मतलब नष्ट हो जाएगा, इसी को कोई चेंज नहीं कर पाता, कोई नहीं चेंज कर पाएगा, बिकॉज इट इज इनएविटेबल, अपरिहार्य जिसको बुलाता है. ये सबसे यदि दुनिया में कुछ सत्य है तो यही सत्य है कि ह्यूमन बॉडी विल बी डिके वन डे. सो ही सॉ ए मेडिकेंट हु हैड कम टू टर्म्स विथ ओल्ड एज एंड डिजीज एंड डेथ एंड फाउंड पीस. जब वो एक तपस्वी को देखने के बाद उनको लगा कि यदि who had come to terms with old age and disease and death and found peace, उनको लगा ये जो मतलब हमको यदि सत्य क्यूरोसिटी लाइफ के बारे में जानना है तो हमको मेडिकेंट खुद को तपस्या में रहना चाहिए और नॉलेज गेन करने के लिए हमको हार्ड पिनांस के भीतर में घूम जाना चाहिए, तब जाकर के मृत्यु से पहले हम कुछ कर पाएंगे, जीवन का सत्य क्या है वो जान पाएंगे और लाइफ समाज को दिग्दर्शन दे पाएंगे. सो सून आफ्टर सिद्धार्थ left the palace at the age of 29 in search of truth. सत्य को खोजने के लिए 29th ईयर में वो घर को छोड़ दिए थे सिद्धार्थ ने. एंड सी इट इज द बोधि ट्री, मीन्स ये पेड़ के नीचे बैठ करके he became the means he got enlightenment. That after that day he became Lord Buddha, and before that he was Siddharth. सो ये बोधि ट्री का नीचे, यही ट्री का नीचे वेट करके तपस्या किए थे और जो जगह में उनको एनलाइटनमेंट जो है मिला था. सो द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स दैट चेंज्ड द लाइफ ऑफ द बुद्धा. सी ही एक्सप्लोर्ड मेनी paths including bodily mortification and he abandoned the extreme path and meditated for several days and finally attained enlightenment at the age of 35 and came to be known as Buddha or enlightened one. उसके बाद 29 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स तक 6 साल तक वो तपस्या किए थे. एंड आफ्टर दैट he got enlightenment and he became Buddha, means he came to be known as Buddha. And for the rest of his life he taught Dhamma. और बाकी after the 35 years means throughout his life he taught Dhamma. Dhamma means the religious thinking and means the path of righteous living. सही तरीका में जीना और दुनिया को रिलीजन के ऊपर में अपना जो बुद्धिज्म जो है उसी को प्रचार करना और जीवन में सत्य पथ में चलना, इसी के ऊपर में वो टोटली लाइफ completely throughout his life he taught and that is known as the Dhamma. ये जो righteous living, path of righteous living को धम्मा बोला जाता है. So see स्टूडेंट्स, हियर आई वांट टू से समथिंग. मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इसमें बहुत सारे स्लाइड्स है, सो दैट ओनली आई विल डिस्कस विथ यू वन स्लाइड एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू मेन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म. ओके, द सोर्सेस सुत्ता पिटका,
means his sacred book name was is Tripitak. Tripitak means Sutta Pitaka, Dhamma Pitaka and Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka. ये जो पिटकस में बहुत कुछ चीज लिखा हुआ है, जैसा कि सुत्ता पिटका contains the teaching of Buddha in the form of stories and few stories describe his miraculous powers. वहां पे लॉर्ड बुद्धा का टीचिंग के ऊपर में कुछ स्टोरी लिखा गया है, कुछ स्टोरी में मिराकुलस पावर के ऊपर में मतलब लॉर्ड का बुद्धा का जीवन के ऊपर में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया गया है. एंड अदर्स सजेस्ट दैट बुद्धा ट्राइड टू कन्विंस पीपुल थ्रू रीजन्स एंड परसुएशन रेदर थ्रू डिस्प्लेस ऑफ सुपरनेचुरल पावर. सुपरनेचुरल पावर के ऊपर में मतलब सुत्ता पिटका में उनके टीचिंग के ऊपर में बुद्धा का बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि सुपरनेचुरल पावर के ऊपर में बहुत कुछ आइडेंटिफाई करता है. So it is the Therigatha and it is one of the name of a important poem of Lord Buddhism and it was written by the first Buddhist woman जो women first बुद्धि में बुद्धिज्म को ग्रहण किए थे, अडॉप्ट किए थे. She was written that book. Understood? So about that teaching of Lord Buddha again we will discuss in the next slide, means next video. So till then you have to watch that video sincerely. And goodbye, bye, and thank you for all of you for your watching.